Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are very fine and good at your home. So this is your lesson of computer science and I am your computer teacher. So as you can see the title on the screen, that is input devices. Okay, so can anyone tell me what are input devices? Fatma, can you tell me what are input devices? Right, input devices are basically those devices which are used to enter data into the computer. वो devices जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा easily enter कर सकते हैं, they are known as your input devices. और किस किस्म का डाटा हम कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं? Right, we can type text, we can enter different kind of alphabets, numbers, symbols, we can add, insert images. So these all is known as your input. So input devices क्या होंगी? वो devices कंप्यूटर के वो parts जिसके थ्रू हम डाटा कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं. So they all are known as your input devices. इनपुट डिवाइसेस वो कंप्यूटर के पार्ट्स जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा एंटर कर रहे हैं. सो बेसिकली द टॉपिक इज नॉट टुडे ऑल अबाउट इनपुट डिवाइसेस. आज बेसिकली हम एक इनपुट डिवाइस दैट इज योर कीबोर्ड. we will discuss keyboard, like how many types of keyboard we have and what are their functions, right? So let's see. First of all, keyboard होता क्या है? What is keyboard? Hamza, can you tell me what is keyboard? Right, keyboard is basically the part of computer. Keyboard is the most important part of computer which is used if you want to enter data in your computer. So if you want to insert data, like if you want to add some numbers, some alphabets, then you can do this with the help of keyboard. So आप सबको पता है कि कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड की मदद से हम इजीली टाइपिंग कर सकते हैं, अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई कीबोर्ड इज नोन एज द इनपुट डिवाइस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have a lot of buttons. As you can see the picture on the screen, we have a lot of buttons on the screens where A, B, C alphabet is written, numbers are written, some other keys, some other function is written. So now what we can call these keys? हम इन buttons को क्या कह सकते हैं? Hamza, can you tell me? Right, we can call these buttons as your keys. हम इन buttons को keys कह सकते हैं and keys are basically the most important part of keyboard. हम keyboard पर typing करने के लिए keys use करते हैं. So we have a lot of keys as you have studied a lot of keys, alphabet keys, number keys, special keys, symbols keys, cursor control keys and some other keys. So the today's task is not how to study keyboard keys. We are going to look what kind of keyboard types we have. Keyboard की कौन सी types हैं जो कि हम use कर सकते हैं. Let's see. First of all, this is your standard keyboard. As you can see, this kind of keyboard you will find in your computer lab, right? So इस keyboard का क्या name होगा? लाइक आपके पास कुछ ऐसे कीबोर्ड भी होते हैं जिसके थ्रू आप गेम खेल सकते हो, राइट? सो वो उन कीबोर्ड का नेम डिफरेंट है. वी विल सी द नेम ऑफ दोस कीबोर्ड. सो नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कीबोर्ड? एज यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन, राइट, दिस इज नोन एज योर डेस्कटॉप कीबोर्ड. इनको क्या बोलेंगे हम? डेस्कटॉप कीबोर्ड. लाइक मोस्टली जो हमारे पास लैब में आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं, दे ऑल आर डेस्कटॉप. वो डेस्कटॉप हैं बिकॉज यू कैन पुट योर कंप्यूटर ऑन योर डेस्क. आप डेस्क के ऊपर रख के या टेबल के ऊपर रख के उसको ईजिली यूज कर सकते हैं एंड यू कैन enter your data in your computer. Similarly, that keyboard is also known as the desktop computer keyboard. Okay, so इस कीबोर्ड पर मोस्टली हमारे पास कितनी टोटल कीज हैं? Bilal, can you tell me how many total keys we have on the keyboard? Right, we have round about 101 keys, or some keyboard has 104 keys, right?
सो आपके पास कौन कौन सी कीज़ हैं? सम अल्फ़ाबेट कीज़, सम नंबर कीज़, सम फंक्शंस कीज़. सो इन सबको जब हम काउंट करेंगे so there will be around about 101 or 104 keys. Now I will assign an assignment to you. आपने क्या करना है कि आपके घर में अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है so you have to count all the keys of this keyboard, right? कीज को काउंट करने के बाद आपने लिखना है कि मेरे पास अल्फ़ाबेट कीज कितनी हैं. I will also write in the in Google Classroom. You just have to write how many alphabet keys we have, how many number keys we have, how many special keys we have, how many punctuation keys we have. So इस तरह से आपने एक एक कैटेगरी बनानी है और उसके अंदर लिखना है कि मेरे पास ये अल्फ़ाबेट कीज इतनी हैं, पंक्चुएशन कीज इतनी है, पंक्चुएशंस मतलब सिंबल्स वगैरह हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, ब्रैकेट, ये मेरे पास इतनी है. स्पेशल कीज जिसमें एंटर की आएगा, शिफ्ट की है, इन कीज की आपने नंबर लिखने हैं. अंडरस्टैंड? Okay, so now let's move to the next type of keyboard. Okay, now what is the use of this keyboard? Can you see this on this picture? Right, so this is known as your लैपटॉप कीबोर्ड. एज यू कैन सी कि ये जो आपके पास कीबोर्ड है ये लैपटॉप की तरह है. सो दिस इज नोन एज योर लैपटॉप कीबोर्ड. दिस इज नोन एज योर लैपटॉप कीबोर्ड. सो जो लैपटॉप का कीबोर्ड होता है वो आपको इस तरह से दिखेगा. उसमें स्पेशल आपके पास जो न्यूमेरिक का कीपैड, यहाँ पर राइट साइड में नंबर कीज़ का एक पैड होता है. लैपटॉप में मोस्टली वो आपको नहीं मिलेगा बिकॉज लैपटॉप का साइज़ थोड़ा कम होता है. सो उस हिसाब से सब चीज़ को एडजस्ट किया हुआ है. राइट, सो लैपटॉप का जो की है वो आपके पास यहाँ से स्टार्ट होता है QWERTY. So that's why we call this keyboard as QWERTY keyboard. So that's why we call this keyboard as the QWERTY keyboard. Because ये आपके पास जो अल्फ़ाबेट कीज़ हैं उनके जो फर्स्ट लेटर हैं that starts with QWERTY. वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं. So that's why we can say them QWERTY keyboard. So this is the another type of keyboard which is known as laptop keyboard. उससे पहले हमने स्टडी किया था. This one is known as your, which one is what we can call this keyboard? फिजान, can you tell me what is the name of this keyboard जो कि हम लैब में भी यूज करते हैं? Right, this is known as your desktop computer keyboard. So this is your desktop keyboard. After that we see laptop keyboard. So now let's move to the next topic. So now what is the name of this part of keyboard? As you can see, this is bigger in size. So now what is the use of this keyboard? Hadia, can you tell me? Right, this keyboard is used basically for gaming purpose. Like अगर आपने games खेलनी हैं, if you want to play video games and if you want to attach this keyboard with your computer, with your laptop, then you can easily attach. आपने सिंपली क्या करना है, इसकी जो केबल है उसको लैपटॉप की पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है एंड देन यू कैन यूज दिस कीबोर्ड. तो इस कीबोर्ड में आपके पास कुछ लाइटिंग की बटन्स हैं, कुछ आपके पास साउंड के, वॉल्यूम के आइकन्स हैं, बटन्स हैं. यू कैन यूज दीज बटन्स एंड यू कैन प्ले द गेम्स. सो इस किस्म के जो कीबोर्ड हैं वो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं गेमर्स के लिए कि जिन्होंने गेम्स खेलनी है, वीडियो गेम्स, एंड देन यू कैन यूज मल्टीपल काइंड ऑफ लाइटिंग ऑन योर कीबोर्ड. So this is known as your gaming and multimedia keyboard. Is it clear? Hamna, is it clear? Right. So now let's see the next keyboard is your. So now what is the name of this mini keyboard? ये जो आपके पास छोटा सा स्क्रीन पर कीबोर्ड नजर आ रहा है, इसका क्या नेम है? Iman, can you tell me?
this is known as your thumb size keyboard. As you can see in this picture, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक पर्सन है, उसने अपने दोनों हाथों से इस कीबोर्ड को वो यूज़ कर रहा है. एंड व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ यूजिंग दिस कीबोर्ड विद हिज थंब. वो अपने थंब के थ्रू इस कीबोर्ड को इजीली यूज़ कर रहा है. सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कीबोर्ड? हमना कुरैशी, कैन यू टेल मी? Right, so this is a thumb size keyboard. We can call this keyboard as the thumb size keyboard. और बेसिकली इस कीबोर्ड को हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि अगर आपके पास मोबाइल है और मोबाइल पे आप टाइपिंग करना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू टाइप योर डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने शॉर्ट स्टोरीज टाइप करनी है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन अटैच दिस स्मॉल कीबोर्ड विद योर मोबाइल. आप अपने मोबाइल के साथ, स्मार्टफोन के साथ, या जो भी PDAs हैं आपके पास, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स जो कि स्मॉल फोन्स होते हैं, उनके साथ भी आप इन कीबोर्ड को इजीली अटैच कर सकते हैं एंड यू कैन यूज देम. सो दिस इज नोन एज योर थंब साइज्ड कीबोर्ड. इज इट क्लियर? दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ कीबोर्ड वी हैव स्टडीड इन दिस लेसन. द फर्स्ट वन वी हैव स्टडीड इज द स्टैंडर्ड कीबोर्ड, विच इज ऑल्सो नोन एज योर डेस्कटॉप कीबोर्ड, जो कि मोस्टली हम कंप्यूटर लैब में, ऑफिस में इन कीबोर्ड्स को यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ ईजी टू यूज़. इसमें आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कीज़ होती हैं जिसको आप नंबर कीज़ के तौर पर यूज़ कर सकते हो. मोस्टली वी कैन यूज़ दीज कीज़ इन बैंक्स. तो दिस इज़ नोन एज योर स्टैंडर्ड कीबोर्ड. ये डेस्कटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड कहते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था लैपटॉप कीबोर्ड. सो लैपटॉप में आपके पास जो न्यूमेरिक पैड है राइट साइड पर, जो डेस्कटॉप में होता है, वो कीबोर्ड लैपटॉप के साथ आपको नहीं मिलेगा. सो इसमें सारी कीज़ एक तरह से कंजस्टेड होती हैं, वो साथ साथ मिली होती हैं. सो दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज लैपटॉप, बिकॉज लैपटॉप के ऊपर जो स्क्रीन है स्मॉल सी, हम उसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली विद दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड. आफ्टर दैट वी सी गेमिंग कीबोर्ड. सो दिस इज़ क्लियर विद द नेम. आपको यहाँ पर बहुत सारे बटन्स, बहुत सारी लाइटिंग नज़र आ रही होगी. सो दिस कीबोर्ड इज़ बेसिकली यूज्ड इफ़ यू वांट टू प्ले गेम्स. अगर आपने गेम्स प्ले करनी है, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल सम अदर डिवाइसेस, अगर आपने कोई ऐसी गेम खेलनी है जिसमें अगर कोई एक पर्सन स्क्रीन में है एंड यू वांट टू प्ले दैट गेम, देन यू कैन यूज़ और प्ले विद दिस विद द हेल्प ऑफ गेमिंग और मल्टीमीडिया keyboard. After that we have studied this small keyboard on the screen. So what is the name of this keyboard? We can call this keyboard as thumb size keyboard. ये मैं बार बार टॉपिक्स आपको रिवाइज करवा रही हूँ बिकॉज आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखने के बाद यू जस्ट हैव टू टेल मी कि मैंने यहाँ पर इस लेसन में हमने कितनी कीबोर्ड की टाइप्स को स्टडी किया है. आपने कमेंट सेक्शन में मुझे उन सब टाइप्स के नेम बताने हैं विद योर नेम ऑल्सो, विद योर नेम एंड क्लास सेक्शन. इज इट क्लियर? ओके. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड द नेक्स्ट कीबोर्ड इज वर्चुअल कीबोर्ड. सो नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ वर्चुअल कीबोर्ड? Hamza, can you tell me what is virtual keyboard? Right, virtual keyboard basically आपके पास एक्चुअल में कीबोर्ड नहीं होते, right? Okay, after that we have the foldable keyboard on the screen. As you can see on the screen, this keyboard is basically we can fold. So what the name of this keyboard will be? Fazul Hassan, can you tell me? Right, this is known as your foldable keyboard. So foldable keyboard का basically purpose क्या है कि आप इसको easily fold कर सकते हैं and you can carry with this keyboard anywhere you are traveling. So foldable keyboard is used if you screen. This is known as foldable keyboard. So what is the meaning of foldable? Rohab, can you tell me what is the meaning of foldable? राइट, एक ऐसा कीबोर्ड जिसको हम इजीली फोल्ड कर सकें और अपने साथ कैरी कर सकें. लाइक इफ़ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दिस काइंड ऑफ कीबोर्ड विल वेरी हेल्पफुल. यू कैन अटैच दिस कीबोर्ड विद योरसेल्फ, विद योर कंप्यूटर. आप इसे अपने कंप्यूटर के साथ इजीली अटैच कर सकते हैं एंड देन यू कैन यूज़, आपने जब भी जहाँ भी यूज़ करना है, यू कैन फोल्ड इट, यू कैन यूज़ इट एंड देन यू कैन फोल्ड इट. सो सिंपली
roll them up and then unroll them when you need them again. So and then you have to tell me in the comment section कि क्या आपने इस कीबोर्ड को कभी यूज़ किया है या नहीं. So this is known as your foldable keyboard. Is it clear? So this is the 5th type of keyboard we have studied. After that we have virtual keyboard. Now what is the virtual keyboard? As you can see, there is a person who is using keyboard, who is typing, but as you can see there is not actual keyboard, there is not any kind of physical keyboard on the screen or on the table. So how he can type? So इस कीबोर्ड में बेसिकली वो लेज़र लाइट के थ्रू इस कीबोर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं. इसमें कोई फिजिकल आपके पास कीबोर्ड नहीं होता जिसको हम टच कर सकें, बट इस कीबोर्ड में एक लेज़र लाइट होती है जो कि एक फ्लैट स्क्रीन पर आपको कीबोर्ड शो करती है, एंड देन व्हेन यू विल प्रेस दोस कीज यू कैन टाइप इन योर कंप्यूटर. So this is also very expensive and we are not using it daily routine. So the mostly we use this keyboard is your standard keyboard. Then we use mostly the laptop keyboard. उसके बाद हमने गेमिंग और मल्टीमीडिया कीबोर्ड को भी आपने अक्सर यूज़ किया होगा. उसके बाद हमने देखा थंब साइज कीबोर्ड. थंब साइज्ड कीबोर्ड क्या होता है और इसका क्या पर्पज़ है. नाउ वी विल सी द कॉमन लेआउट के कीबोर्ड पे आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो किस लेआउट में होते हैं. राइट कि आपने देखा होगा कि आपके पास ABC आपने जो पढ़ी होती है वो ABCDE इस फॉर्म में होती है, A से स्टार्ट होती है और Z पर. लेकिन जो आपके पास कीबोर्ड है उसमें आपके पास अल्फ़ाबेट कीज़ उनका जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे है. इसी तरह से उनके कुछ नेम्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ क्वर्टी कीबोर्ड जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है विद QWERTY. उसका नेम क्या होगा? क्वर्टी कीबोर्ड. राइट. एंड उसके बाद है हमारे पास क्वर्ट्स कीबोर्ड जो कि मोस्टली यूज़ होता है जर्मनी में, ज़ीच रिपब्लिक एंड हंगरी. इसमें जो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं दैट इज़ QWERT एंड Z. और इस कीबोर्ड को हम अपने लिए नहीं बट ये जर्मनी या बाकी जो कंट्रीज़ हैं उसमें इस कीबोर्ड को प्रेफर किया जाता है. आफ्टर दैट वी हैव द स्टार्टिंग लेटर्स AZERTY. और ये जो कीबोर्ड्स हैं ये मोस्टली यूज़ होते हैं फ्रेंच में, फ्रांस. इट इज़ यूज्ड बाय मोस्ट फ्रेंच स्पीकर्स बेस्ड इन यूरोप. यूरोप में मोस्टली हम इन कीबोर्ड्स को यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव DVORA key. This keyboard is known as alternative for QWERTY जिसमें आपके पास जो सीक्वेंस है वो एक तरह से रिवर्स हो जाता है. इसमें बेसिकली क्या होता है? डिवॉर कीबोर्ड uses less finger motion, increases typing rate and reduce errors compared to standard QWERTY keyboard. These all are the different types of keyboards. Is it clear class? Okay, so now let's revise this topic one more time. आज के लेसन में हमने देखा था कि हमारे पास जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, द फर्स्ट वन इज योर कीबोर्ड. पहली जो डिवाइस है आपके पास दैट इज नोन एज योर कीबोर्ड. कीबोर्ड इज योर इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड इफ यू वांट टू एंटर डाटा इन योर कंप्यूटर. अगर आपने अपने कंप्यूटर में डाटा एंटर करना है सो यू कैन यूज़ दिस इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस में जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज योर कीबोर्ड. कीबोर्ड इज़ यूज्ड जिसमें आपके पास डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट सिम्बल्स हैं, एंड देन यू कैन टाइप वट एवर यू वॉन्ट. कीबोर्ड इज़ बेसिकली इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड आपके पास एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में इजीली अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं. उसके बाद हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स कीबोर्ड की. द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड कीबोर्ड. स्टैंडर्ड कीबोर्ड मोस्टली हम यूज़ करते हैं ऑफिस में, कंप्यूटर लैब्स या जो भी आपके पास इस तरह की जो भी कंपनी है. इसका दूसरा नेम क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड. राइट. इसमें मोस्टली राउंड अबाउट 104 से 101 इतनी कीज़ होती हैं. देन वी हैव स्टडीड द लैपटॉप कीबोर्ड. आप सबने यूज़ किया होगा लैपटॉप के साथ जो कीबोर्ड होता है उसमें आपके पास जो कीज़ होती हैं वो कंजस्टेड होती हैं, उनमें ज़्यादा स्पेस नहीं होती. और उसमें जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में यहाँ पर आपको जो एक एक्स्ट्रा कीपैड प्रोवाइड किया हुआ है वो भी इसमें आपको नहीं मिलता. ठीक है. आफ्टर दैट वी स्टडीड द गेमिंग एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड. गेमिंग कीबोर्ड को मोस्टली हम यूज़ करते हैं गेम्स खेलने के लिए.
So gaming keyboard is used if you want to play games, right? After that we have thumb sized keyboard. So this is your foldable keyboard जिसको आप easily fold कर सकते हैं, and you can carry this keyboard with you wherever you want to go. So this is known as your foldable keyboard, और traveling के लिए ये best keyboard है. Then we have studied the virtual keyboard. Virtual keyboard में basically आपके पास physical keyboard type नहीं होता, but इसमें आप एक laser light के through अपने keyboard को touch करके किसी एक flat screen पर वो उसको reflect करती है आपके keyboard को, and then you can touch these keys and then you can type. So now what you have to do, you just have to tell me how many types of keyboard we have studied, and then you have to, so when you will come back to your school, I will ask different questions about these kind of keyboards. And then so simply just complete your work. If you find any difficulty, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom.